পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা, প্রভু যিশু অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুন। Showtime Father John Chabin, King of Howrah Holy Deanery and prior parish priest of his Basilica, and in so many ways he's coordinating so many programs in Bangalore. We are very very grateful to him. Together with all of you, আজকে আমরা যে প্রত্যেক পারিশ থেকে এসেছি, হাওড়া হুগলি থেকে 10টা পারিশ হয়েছে, আর তা সবাই একসঙ্গে আজকে আমরা এখানে হয়েছি। আজকে দিনটা হলো কৃপার দিন, আশীর্বাদের দিন। আজ আমরা আমাদের সব ছোট্ট খ্রিস্টীয় সমুদায়, বেসিক এক্লেসিয়াল কমিউনিটি এখানে একত্রিত হয়েছি, যেটা হচ্ছে এই সমুদায় বিশ্বাসী সমুদায়, প্রার্থনার সমুদায়, ভালোবাসা অংশগ্রহণ করে এবং সেবা বন্ধনে। বিইসির মূল উদ্দেশ্যটা কি? ছোট্ট ছোট্ট প্রার্থনা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বড় মণ্ডলীকে গঠন করা, গড়িয়ে তোলা। এখানে প্রত্যেক সদস্য মূল্যবান, প্রত্যেকের অবদান অনেক বেশি হয়েছে এবং প্রত্যেকে এই পাড়া পাড়া থেকে, গ্রাম থেকে যারা এইভাবে মঙ্গল সমাচারের প্রচার করে তার মধ্যে থেকে তারা জীবন বাণী বেছে এই জীবন বাণী নিয়ে জায়গা জায়গা গিয়ে সুন্দর কাজ করছে। এটাই হলো আমাদের বিটিসির মূল্য, আর তার বিশ্বাসটাকে আমরা জীবনে আমাদের কাজে আমরা পরিণত করি। তাই আজকে পবিত্র পাঠগুলি আমাদের মনে করে দিচ্ছে যে মানুষ এই যে যত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, ভোগ বিলাসিতা রয়েছে, জমি রয়েছে, বড় বড় জায়গা রয়েছে, সব চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী হলো বিশ্বাসে দৃঢ় থাকা, ধৈর্য সঙ্গে কষ্ট সহ্য করা এবং প্রভুর বাণী কথা অবিচল থাকা। তাই আজকে যিশু আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন, তোমাদের মাথায় একটি চুলও নষ্ট হবে না যদি আমরা তাকে অবিচল বিশ্বাস রাখি। তাই বিইসি জীবনে সেই ধৈর্য, সেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রত্যেকে গৃহ সমিতি প্রার্থনাতে আমরা যে যোগাযোগ দিই সেটা নিয়ে আমরা এই ভালোবাসা গড়িয়ে আমরা সুন্দর সমুদায় স্থাপন করতে পারছি। তাই আমাদের প্রত্যেক বিশেষে পবিত্র আত্মাকে আমরা আজকে আবার রিনিউয়াল করব। আমাদের পরিবারগুলো আরও একবদ্ধ হয়, আমাদের সমাজ, আমাদের এই সমুদায় এখানে প্রেম, ন্যায়, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাই আসুন আজকে আমরা খ্রিস্ট জাগে সুন্দর আমরা বাইবেল প্রসেসন করে এসেছি, অনেক সুন্দর করে ভক্তি নিয়ে এসেছি। তাই আজকে আমাদের প্রথম পাঠগুলি যা হবে, আমরা এই আসলে জীবনটা আমাদের স্থায়ী নয়, আমরা চলে যাব। তার জন্য আমরা বিশ্বাসটাকে আরও গড়িয়ে তুলি, আমরা এই সময়টাকে আরও মজবুত করবো। আমাদের পরিচালনা, আমাদের ফাদার জন চারি, আমাদের কিন্তু ফাদার রয়েছে, সিস্টারও রয়েছে, আমাদের যে তোমরা এই যে অ্যানিমেটার্স রয়েছে, আমাদের কোঅর্ডিনেটর মঞ্জু, লিন্ডা, সে কোঅর্ডিনেট করে সবাই একসঙ্গে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি। তাই এই সমুদায়কে আরও গড়িয়ে তুলতে জন্য আসুন আজকে আমরা যা আমাদের দুর্বলতা রয়েছে সেটা আমরা স্বীকার করে আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করব। এখন এসে আমরা আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করি সর্বসত্তার ঈশ্বরের কাছে এবং
তোমাদের কাছে আমি অস্বীকার করেছি আমার চিন্তায় ও আমার কথায় ও আমার কাজকর্মে ও আমার কত অবহেলায় আমি বহু পাপ করেছি নিজের দোষে আজকে আমি তোমার মারিয়াকে সকল সদস্যকে এবং ভাই বোনেরা তোমাদেরও আমার জন্য প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আমি বিনতি জানাই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় হন এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করে শাশ্বত জীবন রাজ্য আমাদের আনয়ন করুন। আমিন।
এসো আমরা প্রার্থনা করি। হে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকালের অধীশ্বর, হে মানব ইতিহাস যাত্রা পরিচালক, আমরা আকুল হৃদয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। কখন ফিরে এসে তিনি আমাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্বজল মুছিয়ে দেবেন, কখন উদিত হবে সেই দিন যখন আর থাকবে না মৃত্যু, থাকবে না আর শোক, আর্তনাদ, দুঃখ, যন্ত্রণা। হে পরমেশ্বর পিতা, প্রভু যীশু যতদিন না আসেন আমাদের প্রাণে সেই শক্তি জাগিয়ে রাখো, আমরা যেন সংসার তাপ সইতে পারি, তোমার কাজে শিরে বইতে পারি। সংকটের সময় যেন আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাস অটল রাখতে পারি, সকল ভয় ভীতি থেকে মৃত্যু হয়ে তোমার অভয় আশ্রয়ে থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি। পবিত্র আত্মার সংযোগে তোমার সঙ্গে জীবনময় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান। First reading. Our reading from the book of Malachi, chapter 4, verses 1 to 2. Behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all the evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in its wings. The word of the Lord.
थिस्सलुनीकियों के नाम पर संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 12। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते हैं, जिनका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों को काम में बाधा देते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहे और अपनी कमाई की रोटी खाए। यह प्रभु की वाणी है। প্রভুর মধ্যে সহায় সাদলুক রচিত মঙ্গল সমাচার। একটি যিশুর কয়েকজন শিষ্য মন্দিরের সম্বন্ধে বলছিলেন যে কেমন সব সুন্দর পাথরে আর মানত দেওয়া নানা জিনিসে মন্দিরটি সাজানো রয়েছে। তখন যিশু বললেন, তোমরা এই যে সব জিনিস আজ মগ্ন হয়ে দেখছো, এমন এক সময় আসবে যখন একটা পাথরের উপর আর একটা পাথরও এখানে থাকতে দেওয়া হবে না, সবই সেই দিন ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া হবে। তারা যিশুকে জিজ্ঞেস করলেন, ওইসব ঘটবে কবে গুরু? কোন লক্ষণ দেখে বা বুঝবো সব কিছু ঘটতে চলেছে? তিনি তখন উত্তর দিলেন, শোনো, সতর্ক থেকো তোমরা, কারো কথায় ভুলন যেন
কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে তো আসবে আর বলবে আমি সেই, কিংবা বলবে সময় এগিয়ে আসছে। তোমরা কিন্তু তাদের পিছু পিছু যেও না যেন তেমনি তোমরা যখন নানা যুদ্ধ বা বিপ্লবের কথা শুনতে পাবে, তোমরা তখন ভয় পেয়ে না যেন। ওইসব অবশ্য আগে ঘটবে, কিন্তু সেই শেষ তো তখনও ঘটবে তা নয়। যিশু বলতে লাগলেন, এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতি, এক রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্য রাজ্য যুদ্ধ শুরু করে দেবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে। আর আকাশের বুকে দেখা যাবে ভয়ঙ্কর সদৃশ্য, আশ্চর্যজনক অলৌকিক নিদর্শন। তবে ওইসব কিছু ঘটবার আগে লোকেরা কিন্তু তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, নির্যাতন করবে। তারা তোমাদের তুলে দেবে সমাজবিকের কর্তৃপক্ষের হাতে, তুলে দেবে কারাগারে। তারা তোমাদের এনে দাঁড় করাবে নানা রাজ্য, নানা রাজা আর শাসনকারী দরবারে। এইসব কিছু তারা করবে তোমরা আমার অনুগামী বলে। আর তাতে তোমরা তো সত্যের সবকে সাক্ষী দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই মনে মনে এই সংকল্প নাও যে তোমরা কিভাবে তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, তা আগে থেকে তোমরা ঠিক করে রাখবে না। কেননা আমি তখন নিজে তোমাদের এমন কথা বলার ক্ষমতা ও এমনই জ্ঞান দেব, যার সামনে তোমরা তোমাদের শত্রুরা কেউ দাঁড়াতে পারবে না, যার বিরুদ্ধে তারা কোনো যুক্তি দেখাতে পারবে না। সেই কিন্তু তোমাদের বাপ মা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব তোমাদের শত্রুর হাতে তুলে দেবে। এমনকি সেই দিন তোমাদের কয়েকজনকে মেরে ফেলা হবে। তখন আমার জন্যে তোমরা হয়ে উঠবে সকলেরই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু তবুও তোমাদের মাথার এক গাছে চুলও নষ্ট হবে না। তখন তোমাদের কর্তব্য নিষ্ঠায় তোমাদের রক্ষা করবে। এই হলো প্রভু যিশুর মঙ্গল সমাচার। इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की जो 3 बात हमने सुनी है, इसके दरमियान मुझे एक व्यक्ति को याद होती है जो विश्व प्रख्यात, वो बात तहलका मचाया हुआ था सोशल मीडिया में, बहुत नाम किया हुआ, हर एक आदमी को मालूम है कि माइकल जैक्सन कौन है, ब्रेक डांस का पायनियर। आधुनिक युग में शायद कोई ऐसा नाम ना हो जिसने वैश्विक स्तर पर बहुत प्रसिद्धि पाई, और ये है माइकल जैक्सन। उनका जीवन चारों ओर सुरक्षा, सुबह से शाम तक हाई क्लास तक सिक्योरिटी उनके पास। उनका जो बेड था वो बहुत साइंटिफिक रूप से ऐसा था कि कभी बेड में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनका बेड पूरा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई थी। ऐश आराम का बड़ा ऊंचा स्तर, जितनी तकनीक होती है, सिक्योरिटी है, शक्ति है, डॉक्टर 24 आवर्स, अगर कुछ सीरियस हो जाएगा तो मैसाचुसेट्स से और न्यूयॉर्क से जो बड़े विख्यात डॉक्टर हैं ऑन द स्पॉट रेडी। ऐसा इसलिए किया गया था कि वो और अधिक लंबी समय जी सके। जितनी नवीनतम चिकित्सा उपकरण है, सुरक्षा घेरा है, 24 घंटे उनकी जो देखभाल है, यहाँ से 2 समय के लिए भी सिक्योरिटी था। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन पर विजय ना पाई।
2012 में जब अचानक उनका देहांत हो गया, सारा पृथ्वी स्तब्ध हो गई। न धन, न नाम, न विज्ञान, न सुरक्षा, सब उनके सामने झुक गए। ये घटना मनुष्य के सामने एक साक्षात सत्य है। जब अंतिम दिन आता है तो मानव में भी जितने भी गौरव है, जितने भी सुरक्षा है, जितने भी है, सब खामोश होकर के छुप जाते हैं। और ही है इसका बड़ा उदाहरण माइकल जैक्सन। आज के तीनों पाठों पर एक पवित्र यात्रा के रूप में हमें प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर इसका सार जो है, निष्ठा जो है, जस्ट 2-3 वाक्यों में समय को समझो। अंतिम दिन आएगा, इसलिए जीवन को ईश्वर की रोशनी से जीना आवश्यक है। और इसलिए आज के प्रथम पाठ पर मलाकी का जो पाठ है, कहते हैं या वह समय है जब ईश्वर न्याय करेगा। ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा होगा जो सत्य है, जो असत्य है, जो बुरे हैं, जो भले हैं, उनका विभाजन होगा। और इसके दरमियान ये हमें तय किया जाएगा कि मैं इस पृथ्वी पर किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया हूं। ये न्याय होगा, ये सत्य है, इसमें कोई संकोच नहीं है। दुष्टता जो है वो भस्म हो जाएंगी, धार्मिक जन ईश्वर के प्रकाश में आएंगे। यह वह समय है जब जिसका सीधा संबंध हमारी जिम्मेदारी से है, हमारे दायित्व से है। यह आलस्य और लापरवाही का समय नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन, जिम्मेदारी, इस वचन को अपने जीवन में कामयाब करने के लिए आपने इतने धूमधाम से ये जीवन वाणी को हमने यहाँ पर लाया है, अपने आनंद के सम्मान के साथ, क्योंकि इसी में हमारा Where do I go to? You have the words of eternal life. मैं कहाँ जाऊँ? हमारा जीवन का जो सत्व है इसी जीवन पर ही है, ईश्वर जीवन। वो आए ताकि हमें जीवन प्राप्त हो। यीशु चेतावनी देते हैं, हमें संचित करते हैं कि अंत समय अचानक, अशांत और चुनौतीपूर्ण होगी। हम बाबा सुनते हैं ना, कल उनका हार्ट अटैक हो गया। वो जोगिनी जो असम के बड़े सिंगर थे, अभी उसको लेकर के कितना माहौल चल रहा है, कितने फिल्म बनाए जा रहे हैं, कितने सारे 38,000 कैसेट बनाया, उसको अभी वो मूर्ति बना रहे हैं। 52 साल का था, बहुत कामयाब था, बड़े बड़े उनकी इन्विटेशन, अचानक एक क्षण चला गया, कोई शिकायत नहीं। तो इसीलिए ये अचानक होती है, अशांत होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। यह समय केवल भौतिक दुनिया का अंत नहीं, बल्कि मानव हृदयों की परीक्षा होती है। इस प्रकार तीनों पाठ मिलकर हमें घोषणा करते हैं कि समय कोई साधारण कर नहीं, समय ईश्वर के आमंत्रण की निरंतर ध्वनि है। यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि ये नफरत, विरोध, उत्पीड़न का सामना करना होगा, परिवार टूटेंगी, समुदाय का विरोध होगा, समाज विरोध करेगा, लेकिन विश्वास परीक्षा की अग्नि में डाल दिया जाएगा। इसलिए जो हमारी जो जीवन है ये फूलों की साज नहीं है। कांटे, हर जीवन में कांटे आते हैं। आपके परिवार में देखते हैं कितने सारे उलझनें आती हैं,
और ये है हमारे जीवन का सिलसिला। सच तो ये है कि हर युग में विश्वासियों का जीवन प्रलोभन और संघर्ष से गुजरता है, और इसलिए आज हम बोलेंगे हमारा संघर्ष, हमारा प्रलोभन है ये सोशल मीडिया है, ये हमारा मोबाइल से जितने सारे प्रोग्राम है, कितने सारे हमारे युवक युवती आज ध्वस्त हो जा रहे हैं, ये मोबाइल का जो चिलचिला चला रहा है, ये है हमारा प्रलोभन, बहुत बड़ा प्रलोभन है। हमारा परिवार टूट जाती है। लेकिन BEC बेसिक एक्लेसियल कम्युनिटी, लघु ख्रिस्तीय समुदाय में ये विश्वासियों का जीवन इसलिए महत्व रखता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये सुंदर सुंदर जो यूनिट है, समुदाय है, हमारे टोले में, हमारे पारिश में, हमारे माहौल में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे अपार्टमेंट में छोटे छोटे ये मंडली होती है, ये बोलते हैं माइक्रो चर्च। ये बड़ा चर्च है, हमारा बसीलिका चर्च है, हमारा गवर्नमेंट चर्च है, हर पारिश है। लेकिन ये हमारे स्थापन करते हैं छोटे छोटे, ये क्या है, माइक्रो चर्च, छोटे छोटे गिरजे है। क्यों गिरजे है? क्योंकि वहाँ पर हम जो विश्वास करते हैं, मैं एक पवित्र कैथोलिक अपोस्टलिक गिरजा पर मैं विश्वास करता हूँ, वही बन जाती है। आप जब इस प्रकार से इस वचन का आप आदान प्रदान करते हैं, जीवन का आवाज दे देते हैं, और इस प्रकार से आप अपने जीवन में इसमें आप जीते हैं, तो वो छोटा छोटा बन जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कलीसिया को हम गठन करते हैं, ये बड़े गिरजा को हम गठन करते हैं, और इसलिए हम अकेले नहीं करते हैं, हम टूटते नहीं हैं, और इसलिए ये समुदाय में शक्ति मिलती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए जितने हमारे पास चुनौती है, ये चुनौती हमारे लिए आसान बन जाती है। BEC का उद्देश्य यह है कि हम मिलकर विश्वास के साथ, प्रेम के साथ ये यात्रा को सहे, जहाँ पर हम अराजकता, विनाश का समय, ये सोचिए घटनाओं को लोग करते हैं आज, और यीशु ख्रिस्त कहते हैं युद्ध होगा, भूकंप होगी, महामारी होगी, अकाल होंगे, राष्ट्र राष्ट्र में तनाव होगी। ये केवल बाहरी घटनाएं नहीं है। और आज हम देखते हैं यूक्रेन, रशिया, इजराइल, अब गाजा में, सारी जगह में किस प्रकार से आपस में मजबूर हो रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा कितनी सारी चुनौती आती हैं, कितने सारे गिरजे जल जाती हैं, कितने सारे इतनी जैसी जब माहौल में आप जब प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार से हमारे दूसरे विरोधी दल आकर ध्वस्त कर देते हैं। यही है ईश्वर की बातें आज जो बोलते हैं हमारे आज के हमारे जो सुसमाचार में, इसी का बखान कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, ये हो रही है, ये घट रही है, ये हमारे सामने चल रही है। और इसलिए कहते हैं मानव के घमंड और धर्म को भी याद दिलाते हैं। जैसे शिष्यों ने मंदिर की सुंदरता पर चकित होकर कहा, वैसे ही आज हम बड़े बड़े निर्माणों, तकनीक और धन और शक्ति पर गर्व करते हैं। यीशु कहते हैं इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है, एक दिन सब ढह जाएगा। अचानक भूकंप हो जाती है आजकल, देखते हैं उत्तराखंड घर में, यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, ये हो रही है, अचानक सब ध्वस्त हो रही है। इसलिए माइकल जैक्सन की मृत्यु भी यही कहती है कि मानव महिमा चाहे वो कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, क्षण भर में समाप्त हो जाती है। हजारों हजारों आपके सामने उदाहरण है। तो आज के इस वचन को आज हम सबों के लिए क्रिस्तीय लघु ख्रिस्तीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा एक सुंदर संदेश देता है। छल और भ्रम का समय इसे चेतावनी देते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता और आत्मा घोषित मसीहा आएंगे, वो कहेंगे मैं ही हूँ। यह समय आ गया है, लेकिन उद्देश्य लोगों को भटकाना है। आज हम सोशल मीडिया, अफवाहों, धार्मिक दिखावे,
झूठे चमत्कारों और अंधविश्वासों के माध्यम से यही चीज देखते हैं कि मानव मन सरलता से भ्रमित हो सकता है और ये हम हो जाते हैं। हम भी इसी प्रकार से सोशल मीडिया में बहुत किसी में हम बह जाते हैं। मैं सब कोई कुछ ना कुछ हद तक 5%, 10%, 20% सब ना कुछ हद तक हम भर जाते हैं। कहते हैं विवेक रखो, आध्यात्मिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है और इसलिए बाइबल ईश्वर BC का समुदाय में ये हमारे लिए क्या है? स्थायी मार्गदर्शक है। इसलिए ये जो मैंने बाइबल को इतने सुंदर से कोशिश में लिए गया है, ये क्या है हमारे लिए? स्थायी मार्गदर्शक है। ये क्रिस्टियान जो है हम सबों के जीवन का केंद्र है। हम किस प्रकार से इसमें अंश ग्रहण करते हैं। आज का जो हम संदेश किस प्रकार को हम ले जाते हैं। Master saying, go in peace, glorify the Lord by your lives. अंत में हम ये कहते हैं, प्लीज यही कहते हैं, लेकिन हम जाते हैं back to square one. तो ये हर एक मिसा का जो एक पाठ है, ये संदेश है, इसको हम लेकर के अपने परिवार में, अपने टोले में, अपने समुदाय में जीने की कोशिश करते हैं और यही है स्थायी, अस्थायी। आज हमें कहते हैं जागरूकता करना। जीवन अनिश्चित है, अंत आएगा, इसलिए हर दिन ईश्वर के लिए हम जिए। जागरूकता हमें अहंकार घमंड से मुक्त करती है। सब हम सबों में कुछ न कुछ अहंकार है, गर्व है, घमंड है और ये जीवन को ध्वस्त कर देती है। इसलिए आज का जो पाठ कहते हैं आलस्य मत बनो, जो काम करते हैं उसी को खाने का हक है। तो सोचते बोझ ना बनो, आज के पाठ में कहते हैं बोझ बात तो कुछ होती है, काम नहीं कर सकती है तो खाने का भी अधिकार नहीं है। बहुत जबरदस्त बात करती है। विवेक रहने से हम झूठे वादों, झूठी आशाओं, भ्रमित शिक्षाओं से बचना ही कोई भी है। इसलिए हमें विवेक होना चाहिए। सच्चाई वही है जो ईश्वर के वचन और कलीसिया की शिक्षा पर आधारित है। इसलिए आइए हम कहेंगे ईश्वर का न्याय और अंतिम प्रकाश मलाकी पहले पाठ में स्पष्ट करते हैं कि दुष्टता राख बनकर उड़ जाएगी, घमंड का कोई अवशेष नहीं बचेगा, परंतु जो प्रभु से डरते हैं, जो उनके वचनों से चलते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उगेगा। और यही है, या सूर्य जो है केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि आरोग्य, शांति और नया जीवन और अनंत आशा लेकर के आएगी। ये हम जुबली बना रहे हैं, आशा का संचार करना, ये आशा लाएंगे। हमने ये पूरा वर्ष ये आशा को लेकर के ठीक बना करके हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे छोटे छोटे समुदाय में हमने ईश्वर लेकर के किस प्रकार से लोगों के जीवन में आशाएं लाएंगे, अपने जीवन में आशा लाएंगे, यही लेकर हमने बहुत सारे परिचालना की है, परिकल्पना की है। किसमें मेरे प्यारे भाई बहन चाहते रहो, तैयार रहो। माइकल जैक्सन की आशा रखने के लिए हमें एक कठोर सच्चाई दिखाई पड़ती है। समय किसी भी क्षण बदल सकता है और जब समय बदलेगा तब कोई मानव शक्ति हमें नहीं बचा सकती। केवल ईश्वर का प्रेम और हमारे विश्वास योग्यता ही हमें अनंत जीवन दे सकती है। BEC Day in Bangalore, such a beautiful place। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें सौभाग्य है, हमारे फादर जॉन चली, हमारे यहाँ के जो डीन हैं, उनके मध्यस्थता के द्वारा हमें अच्छा सुंदर जगह मिला है। ये जितने भी फैसिलिटीज़ हमें दिया गया है। हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे डिनर के मिसेस मंजू लीला है, उनके साथ जितने भी पैरिस के कोऑर्डिनेटर्स हैं, सबके साथ एक नेटवर्किंग काम किया गया है और सब हम कहने यहाँ कहें हर एक जगह यहाँ पर बहुमूल्य है।
Everybody is precious. और सबको मिल करके आज हम यहाँ पर एक परिवार के रूप में आए हुए हैं। हावड़ा हुगली डिंगरी के परिवार यहाँ पे है। आज हम सबों के लिए हर्ष है। मुझे बहुत आशा, बहुत ही आनंद हो रहा है। मैंने कल अपने आर्चबिशप एलियास को कहा कि मैं कल जा रहा हूँ हमारे हावड़ा हुगली डिंगरी पे जो जुबली डे है, BEC डे सम्मानित, उन्होंने कहा है मेरी प्रार्थनाओं के साथ है। उनको भी ये BEC के लिए बहुत हमदर्दी है। वो कहते हैं कि हमारा जो मूल उद्देश्य होगा, हमारे जो ये डायसिस के लिए मैं भी इस चीज़ पर बेसिक ध्यान रखूँगा, क्योंकि BC के जरिए ही हमारी मंडली का गठन होगा, हमारे मंडली में और ही ये आगे बढ़ सकती है। और इसलिए उनका भी आह्वान है हमारे आर्चबिशप एलियास। कल हमने गया था बारासात में, वहाँ पर हमारा 24 परगनास 12-14-45 वहाँ पर हमने BEC किया है। वहाँ पर आर्चबिशप थॉमस थे, उनका भी यही आह्वान था। वो भी हमारे साथ जितने साल का 13 साल काम किए हमारे साथ, उन्होंने भी इस पर बहुत महत्व दिया है। तो किसने मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का एक अच्छा सौभाग्य है कि आप BEC के सक्रिय मेंबर हैं। और इसलिए मैं आप सबों को फिर से इस के आपको और भी मैं साथ देना चाहता हूँ कि हम सभी आपके साथ हैं। 18 लोग यहाँ पर हमारे सिस्टर रश्मि है और हमारी सिस्टर दौलती है। ये दोनों हमारे ऑफिस में बहुत काम करती है, ये सब्जेक्ट परिचालना करते हैं, वोट करते हैं। इसलिए हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं, एक साथ नेटवर्क काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिस्टर लोग बैटल में बहुत सहयोग करते हैं। हर एक पार्टी में जो भी सिस्टर लोग हैं काफ़ी सहयोग मिलता है। आज हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। ख्रिस्तान में याद दिलाती है कि हमारी शक्ति, हमारी सुरक्षा, हमारी आशा कि भी कभी भी सांसारिक चीज़ में नहीं, बल्कि यीशु के शरीर और रक्त से आती है। हम पवित्र बलिदान में आज अनुग्रह प्राप्त करेंगे कि हमें परीक्षाओं में दृढ़ बनाए, भ्रम से बचाए और कष्टों में विश्वास को जीवित रखें। आज के वचन कहते हैं कि अंत तक धैर्य रखो, उद्धार पाएंगे। यीशु ख्रिस्त इस ख्रिस्तियान में यीशु ख्रिस्त हमें यही धैर्य, यही शक्ति, यही साहस देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे यीशु स्वयं को रोटी के रूप में हमें देते हैं, हम भी अपने जीवन को सेवा, प्रेम और निष्ठा की रोटी बनकर दूसरों को बांट सके। जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के वचन और इस पवित्र ख्रिस्तियान के माध्यम से विश्वास को मजबूत कर हमें अंत समय के डर से नहीं, तुझ पर भरोसा की शांति से भर दे। हमें सच्चा साक्षी बना, ताकि हमारे जीवन में तेरी महिमा दिखाई पड़े। आमीन। प्रभु करके हम अपना विश्वास एक साथ प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद परमेश्वर का विश्वास करता हूँ और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया है, मरियम से जन्म, पौंतियस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह भूलोक से उतरा और किसी भी मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरूढ़ हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों का मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम, भरोसा और विश्वास, ये तीनों दैविक गुण हैं। और यदि हम विनम्रता होकर प्रार्थना करें तो ईश्वर हमें इन्हें प्रदान करेगा। प्रेम ही सच्चे आनंद का स्रोत है। अतः हम इन दैविक गुणों के लिए प्रार्थना करें और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। एक साथ
प्रतीकात्मक अर्पण प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी प्रतीकात्मक वस्तुओं द्वारा अपने आप को तथा अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। मोमबत्ती। प्रारंभ में पृथ्वी अंधकारमय था। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। यह जलती मोमबत्ती प्रभु के प्रकाश का प्रतीक है, जो ईसा मसीह के रूप में हमारे दिलों के अंधकार को मिटाने आए। हे प्रभु, यह मोमबत्ती तेरी ज्योति का प्रतीक है। तूने कहा तुम संसार की ज्योति हो। आज हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी धर्म वर्णों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, जिन्होंने तेरी ज्योति से इस अंधकारमय संसार में शांति, एकता और प्रेम को स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। वे तेरे वचन की रोशनी से हर विश्वासी को स्वर्ग की ओर इस तीर्थ यात्रा में मार्गदर्शन करते रहे। हमारी आशा और विश्वास का प्रतीक या भेंट ग्रहण कीजिए। धूप। हे प्रभु, धूप की सुगंध आपको अति प्रिय है। हम सभी BEC के द्वारा तेरी पवित्र कलीसिया के लिए अति उत्तम सुगंधित धूप बन सके और अपने जीवन में भलाई और पवित्रता की खुशबू से तेरी कलीसिया के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन सके। यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्यों की प्रार्थनाओं की सुगंध तेरे पास पहुँचे। हमारी प्रार्थनाओं का प्रतीक या धूप ग्रहण कीजिए। पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के रूप में हम सारे संसार के बच्चों को अर्पित करते हैं। वे ईश्वर के वचन की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सके। तेरा वचन उनके पांव का दीपक बने, उन्हें अपने वचन से शक्ति, ज्योति और सच्ची आशा प्रदान करे, ताकि वे समाचार प्रचार के माध्यम तथा गवाह बन सके। बाइबल के रूप में हमारे बच्चों के मन और हृदय को ग्रहण कीजिए। गीली मिट्टी। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी नया आकार लेती है, हम भी तेरे हाथों में मिट्टी हैं। हमें अपने अनुरूप एक उपयुक्त पात्र बना। हमें अपने वचनों के जीवन जल से सहलाकर कोमल और लचीला बना। हम तेरे आत्मा के संस्पर्श से नवीन बन जाएं, ताकि हम में ना कोई दाग धब्बे और ना कोई झुर्री रह जाए। हमें इस गीली मिट्टी के रूप में स्वीकार कीजिए। पौधा। हे प्रभु, यह पौधा हमारी पृथ्वी का प्रतीक है, जिसकी सृष्टि तूने हमारी भलाई के लिए की है, जिसकी देखरेख और खेती बाड़ी करने के लिए तूने हमें पूर्ण अधिकार दिया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संभालें, सुरक्षित रखें और उनकी देखभाल करें। पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण का उपहार दे सकें। स्वार्थपरता के कारण नष्ट होती पृथ्वी और मानव जाति का प्रतीक यह पौधा ग्रहण कीजिए। पानी का कटोरा और तौलिया। हे प्रभु, यह पानी का कटोरा और तौलिया आपकी सेवा और विनम्रता का चिन्ह है। जिस प्रकार आपने झुककर अपने चेलों के पांव धोए, उसी तरह हम भी विनम्र होकर अपने गुणों और वरदानों को एक दूसरे की सेवा
भलाई और परोपकारिता में लगा सके। बीईसी के द्वारा हमें वचन तथा लोगों की सेवा करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर हमें दिया है, हम कृतज्ञ भाव से यह पानी का कटोरा और तौलिया के रूप में पूरे बीईसी समुदाय को अर्पित करते हैं। नमक। हे प्रभु, साधारण पर अति उपयोगी यह नमक शुद्धता का प्रतीक है। इस नमक के रूप में हम अपने युवा भाई बहनों को अर्पित करते हैं। जैसे नमक संरक्षण कर नष्ट नहीं होने देता, वे भी पृथ्वी के नमक बनकर लोगों को आध्यात्मिक पतन से बचा सके। भोजन में स्वाद भरने वाले नमक की तरह वे अपने अच्छे विचारों और आदर्शों द्वारा दुनिया में ईश्वर की भलाई और आनंद का स्वाद भर सके। इसके उपचार और शुद्धता के गुणों को अपनाकर वे समाज को शुभ विचारों द्वारा प्रेरित कर सके, ताकि हम फेंके और रौंदे ना जाएं, बल्कि उपयोगी बन जाएं। नमक के प्रति युवाओं को ग्रहण कर। फल और फूल की टोकरी। हे पिता, हमारे परिश्रम का प्रतीक फलों से भरी यह टोकरी तेरे दिए दानों के लिए धन्यवाद स्वरूप अर्पित करते हैं। प्रकृति का यह उत्तम उपहार तेरी आशीष और प्यार का चिन्ह है, जो हमारे तन और मन को निरोग रखती है। हम भी गरीबों और भूखों से साझा करते हुए उनकी आशा बन सके। धन्यवाद स्वरूप फलों की आकृति ग्रहण कीजिए। रोटी। मिट्टी की उपज यह रोटी हमारे परिश्रम का चिन्ह है। रोटी की कटोरी के रूप में हम विशेषकर हमारे किसान भाई बहनों को तुझे चढ़ाते हैं, जो चुपचाप खेती का संसार का पेट भरते हैं। प्रभु यीशु के गेत्सेमानी बारी में बहे रक्त और पसीने की बूंदें किसानों के पसीने की कमाई और मेहनत पर उतरे। आज यह साधारण सी रोटी तेरे संस्पर्श से मसीह का शरीर बन जाए, जिसे ग्रहण कर हमें आत्मिक पोषण मिले। ये रोटी का कटोरा ग्रहण कीजिए। दाखरस। हे प्रभु, यह दाखरस मसीह के बलिदान का चिन्ह है, जो हमारे उद्धार के लिए बहाए गए। स्वर्गीय पिता, दाख का यह रस हमारे लिए जीवन ईश्वर का पेय बन जाए, जिसे पाकर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए और हमारी आत्मा कभी प्यासी ना हो। दाख का यह रस का कटोरा ग्रहण कीजिए। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हम आशा के तीर्थ यात्री इन प्रतीकों के साथ स्वयं को अर्पित करते हैं। हमारे जीवन को आपकी आशा, प्रेम और विश्वास का साधन बनाइए। आमीन। प्रभु के चरणों
बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की। अन्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। তুমি সমস্ত পবিত্র উৎসব এখন আমরা তোমাকে নয় করি, তোমার প্রতি আমার স্পর্শে নৈবেদ্য পবিত্র করে তুলো, তা যেন পবিত্র হয়
আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দেহে ও রক্তে যন্ত্রমায় মৃত্যুর কাছে স্বেচ্ছা সমর্পিত হওয়ার পূর্বে তিনি দুটি হাতে নিলেন এবং তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই দুটি খণ্ড করে তার শিষ্যদের দিয়ে পড়লেন, নাও খাও সকলে, এই আমার দেহ তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে। তিনি ভাবে সন্ধ্যা হতে বলে তিনি পান পাত্রটি নিয়ে তোমাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি পাত্রটি তার শিষ্যকে দিয়ে বললেন, নাও পান করো সকলে, এই আমার রক্তের পাত্র, নতুন শাশ্বত সন্ধির রক্ত। এই রক্ত তোমাদের জন্য আর সকল মানুষের জন্য পাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে। তোমরা আমার শরণার্থে এই আবিষ্কার করবে। এসো আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসে মহারহস্য স্মরণ করি। কথা স্মরণ করে আমরা এই জীবনদায়ী রুটি এবং এই মুক্তি পাত্র তোমার কাছে নিবেদন করি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই পূর্ণ যোগ্য নিবেদন করা, এই যোগ্যতা তুমি আমাদের দিয়েছ, তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা সকলে নিবৃত্তি করি এই খ্রিস্ট যোগ্য ভোজে অংশগ্রহণ করে আমরা সবাই যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে এই ক্ষয়ে উঠতে পারি। হে পিতা, সমগ্র ভূমণ্ডলে বিস্তৃত তোমার ভক্তমণিকে স্মরণে রেখো, আশীর্বাদ করো আমাদের বিশ্বাসী লিও, আমাদের ধর্মপাল এলিয়াস এবং অন্যান্য মন্দির মন্ডলী সেবকের সঙ্গে আমরা সবাই যেন মুক্তি ভালোবাসায় পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠি। পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা করি আমাদেরকে সমস্ত প্রিয়জন শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন এবং যেসব মানুষ মদিয়ার পরিবারের মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের কথা মনে রেখো। তোমার মুখমন্দির দিয়ে তাদের সকলকে উদ্ভাসিত করো। আমাদের সকলের প্রতি প্রদর্শন করো। ঈশ্বর কুমারী মাইয়া তার পূর্ণ শিক্ষা জোসফ ধন্য প্রেমিক দুর্গুণ এবং যুগে যুগে যে সকল সাধু ব্যক্তি তোমার প্রীতি লাভ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাদের শাশ্বত জীবনের সৌভাগ্য উজ্জ্বল করে তোলো। আমরা যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার মহিমা করতে পারি। তোমার প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আমরা প্রার্থনা করি। Viva
তোমাকে বিনতি জানাই, সকল অমঙ্গল থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। প্রসন্ন হয়ে তুমি এই জীবনে আমাদের শান্তি দাও। আমরা যেন তোমার করুণা উপর নির্ভর করে পাপ থেকে সর্বদা মুক্ত থাকি এবং নিঃসংকটে নিরাপদে জীবন যাপন করি। তার কথা শিশুর আগমনে আনন্দময় প্রত্যাশা। যীশু খ্রিস্ট তুমি তোমার শিষ্যদের এই কথা বলেছিলে, তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমার ওই শান্তি তোমাদের দিলাম। আমাদের পাপের প্রতি নয়, তোমার ভক্ত মন্দিরের বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমাদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করো তোমার আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও কৃপা। কারণ তুমি বিশ্বের উপর যুগে যুগে বিরাজমান। আপনাদের প্রভু শান্তি সবার তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক। আমরা এখন পরস্পরকে শান্তি সম্ভাষণ জানাই। ईश्वर का प्रेमला जो हम सबों के पापों को हर लेते हैं और धन्य है हम सभी जिसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर अपनी आस्था से
आज के इस सुंदर मिशा के लिए मैं फादर डोमिनिक, जो हमारे कलकत्ता आज क्राइसिस के डायरेक्टर हैं, और हमारे कलकत्ता क्राइसिस के ईशी का मैंने मूलों हुआ जिसको बोला है बांग्लादेश में, वही चीज़ है। मैं जब से बीसी ज्वाइन किया है, मैंने उनका जो सहयोग जो देखा है और उनका जो गाइडेंस देखा है, मैंने बहुत से प्रभावित हुआ है। और हम लोग का जितना भी बीसी टीम है, उसको सबको एनकरेज करने के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। और आज के सुंदर मिशा, सुंदर उद्देश्य और हमारे यहाँ बीसी का क्यों जरूरत है, बीसी का महत्व क्या है, ये सुंदर से समझाए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं हमारे पंडित पुरोहित हावड़ा हुगली प्रणाली के टीम हमारे फादर जॉन को भी धन्यवाद देता हूँ। ये सारी जो व्यवस्था उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं के सुझाव में हुआ है, इसलिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी तुरंत मिशा के बाद हम लोग सब कोई खाने के लिए यहाँ जाएंगे। धन्यवाद। ईश्वर प्रार्थना करी। हे पिता, তোমার পুত্র আশিস মুক্ত তার আত্মসর্গে সর্বানুষ্ঠান পালন করে এবং তোমার মহাদান এই খ্রিস্ট প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা ধন্য হলাম। এই অনুষ্ঠানের শেষে আমরা আবার তোমাকে ডাকি, এই ধর্মক্রিয়া শুভ ফলে তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি আর প্রতিবেশী মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেন আরো গভীর হয়ে ওঠে। আমাদের প্রভু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি। के अंतिम आशीर्वाद के पहले हमारी दो बातें केवल है धन्यवाद और प्रशंसा। बहुत सुंदर से आप लोगों ने ये बाइबल प्रोसेशन करके यहाँ पर प्रवेश किया है। एक सुंदर ब्यूटीफुल जो कहते हैं ना एम्बियंस वातावरण, प्रार्थनामय वातावरण यहाँ पर तैयारी की, और ये परिचालना हमारे श्रद्धेय फादर जॉन चैलेंज के मध्यस्थ के द्वारा और आपकी जितनी टीम है यहाँ पर, फादर सिस्टर लोग यहाँ पर, आप जितने भी अगुवाई हम देख रहे हैं, कॉयर लोग हैं, वॉलंटियर्स लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, सब मिलके इस सुंदर से आपकी है ये प्रश्न शेयर है। वेरी कमेंडेबल, आई एम सो हैप्पी एंड वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज बिशप एलियास का एक संदेश है हमारे वुमेन कमीशन के लिए। वुमेन कमीशन में वो चाहते हैं हमारे महिला लोग का चयन हो, माने ठीक चयन हो, जो कि वुमेन कमीशन का नेतृत्व करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। और इसलिए उन्होंने ये ख्याल रखा है प्रत्येक पैरिश से दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनके द्वारा ये इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के दरमियान वुमेन कमीशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त उनका आदेश है। वो सर्कुलर भेजेंगे, मंडे ट्यूसडे तक में वो ये सर्कुलर भेजेंगे, तो महिलाओं को बहुत बड़ा उनका आशाएं हैं और सबको मौका मिले, चाहे वो डिनरी में हो, चाहे वो सिटी पैरिश में। सिटी पैरिश से बेसिक मिलता है, लेकिन हमारे डिनरी से नहीं होती है, इसलिए उनका ख्याल है कि डिनरी को और महत्व दिया जाए, और ये ख्याल रखा। इसलिए महिला लोग अपने अपने में फादर के ज़रिए बैठ करके देखिए क्या अच्छा संभव है। यहाँ पर इलेक्शन होगा और इलेक्शन के दरमियान ये हमारे कलकत्ता धर्म प्रांत के महिलाओं का प्रतिनिधि और प्रेसिडेंट बन सकेगा। अंत में हम लोग आशीर्वाद लेंगे। तब आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान करुणामय परमेश्वर तुम्हारे आशीर्वाद करो
তোমাদের অন্তরে জ্বালিয়ে তুলুন মুক্তিদায়ী জননের আলো। পরমেশ্বরের আশীর্বাদ করুন, তিনি যে প্রেমে বিশ্বস্ত এই কথা উপলব্ধি করে তোমরাও যেন তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকো, সত্য কর্ম সাধনে নির্লস হয়ে থাকো। পরমেশ্বর আশীর্বাদ করুন, প্রেম ও শান্তির পথে তিনি তোমাদের নিয়ে চলুন, নিজের বুকের কাছে তোমাদের টেনে নিন। সরস্বতীবান পরমেশ্বর পিতা ও পুত্র পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। খ্রিস্ট যাগ সমাপ্ত হলো, তোমাদের ধন্য হোক।